Okay, can I start now? Good morning. Can you see it? Yes, sir. Okay, question number 66. We are done up to 65, now 66. How to do this question? Figure shows cross-sectional view of hollow cylindrical conductor with the inner radius r and outer radius 2r. Cylinder carrying uniformly distributed current along its axis. The magnetic induction at the point P at distance 3 r by 2 at this point from the axis. So you make the circle of this radius. Okay. So how much current will pass through? This much area. ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसमें से कितना करंट जाएगा? That will be current enclosed. This will be एम्पियर लूप. उसके अंदर से कितना करंट जाएगा? That matters. I enclosed. That we can find out. यूनिटी मेथड से निकाल लो. Total current is I, which is passing through this area. तो यूनिट इतने एरिया से डिवाइड कर देंगे, आई मीन मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दैट विल बी करंट. फिर किरचॉफ लॉ, आई मीन एम्पियर सर्किट लॉ. एक और पॉइंट देना चाहिए इसमें. कंडक्टर के अंदर ना म्यू आर शुड बी गिवन 1. टेक म्यू आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया तो म्यू आर भी रहेगा, परमिएबिलिटी भी रहेगी मटेरियल की, है ना. देखो यूनिटरी मेथड से फिर एक मिनट. Just I am seeing current कहाँ दिया. Cannot given the current in this. I we have to take. हाँ, current. I current uniformly distributed current I along its axis. ठीक है. बस current per unit area into the area enclosed will be the current enclosed. तो ये hollow है, outer radius is 2r, inner is r, तो ये per unit area हो गया इतना, multiplied by considered area ये 3r by 2 minus r. इतना एरिया का करंट निकाल रहे हम लोग. ये क्लियर. करंट आ गया 5i by 12. नाउ यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, B dot dl will be 2 pi r, integration of dl 2 pi r, r is 3r by 2. यहाँ पे mu r times of mu naught because material के अंदर है, तो mu r is given 1 into current enclosing. If you simplify it, option D is coming. Clear? चपला से हम लोगों ने किए थे, उस समय हॉलो नहीं था. हमने जो क्वेश्चन किया अपनी टेक्स्ट बुक में, ये हॉलो पार्ट नहीं था, उसमें सॉलिड सिलेंडर था. बट जितना हॉलो पार्ट है उतना माइनस हो जाएगा, उतना करंट. क्लियर है ना? We have done it. Solid example of NCERT book. This can be asked. ठीक है.
No doubt in this? You have any doubt in this? What about this? Uniform conducting wire EBC has a mass 10 gram, current 2 ampere flowing through it. The wire is kept in uniform magnetic field 2 Tesla. The acceleration of wire will be. Vector length लेनी पड़ेगी. Bent vector length will be this much. Vector length ऐसे लेनी पड़ेगी ना. तो 4 और ये 5 तो 3 सेंटीमीटर आएगी. तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज BIL. लेंथ ओनली, ये लेंथ है, वेक्टर लेंथ AC लेनी पड़ेगी. दैट्स ऑल. ठीक है. यहाँ पे देखो लिखा है हमने AC लेना है. वेक्टर लेंथ इज AC which is 3 सेंटीमीटर. गॉट इट. ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके अपवर्ड देखो L क्रॉस B. L इधर आएगा. ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स राइट. palm will be अंदर की तरफ, thumb will be ऊपर की तरफ. upward along the y-axis. Easy question. B ऑप्शन है. जब ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे. In following figure, wire bent in the form of regular polygon of n sides is inscribed in a circle of radius A. Net magnetic field at center. तो इसकी net magnetic field निकालनी है. Yes, radius A ली हुई. Each side is making angle 2 theta. Theta plus theta, 2 theta बना रहा है सेंटर में. How to solve this? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. Come on, tell me how to do it. Fast. Are you there? Yes, sir. No. बताइए how to do this. How to do this question. फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ तक. इसका ये एक एंगल, दोनों एंगल θ1 θ1 एंड θ2 थीटा है. तो उसको n टाइम्स कर देंगे. और ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दैट विल बी E cos थीटा. राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. तो R विल बी A cos थीटा. एंगल दिया उन्होंने, एंगल इज थीटा इक्वल पाई बाय n. ये कैसे आएगा. थीटा विल बी एक्चुअली 2 थीटा. 2 थीटा विल बी
टोटल एंगल ऑफ सर्कल डिवाइड बाय साइड्स, टोटल एंगल 2 पाई होगा। कितनी साइड से, एक साइड अगर 2 थीटा बना रही है तो दैट विल बी टोटल एंगल मेड बाय टोटल साइड। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा विल बी पाई बाय एन। ठीक है, बस एंगल मिल गया, एंगल दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी। तो फाइनाइट लेंथ का फार्मूला क्या होता है? फाइनाइट लेंथ का फार्मूला क्या है? देखो यहाँ पर r is a cos theta perpendicular distance उसकी, this one is r, 2 theta will be total angle made by one edge। इन्होंने दे भी दिया वैसे तो, sometimes if it is not given you have to find out। Angle made by one side is total angle divided by total number of sides, pi by n। Field will be, net field will be n times of field due to each side। तो each side का कैसे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर की वैल्यू cos थीटा पुट कर दी, ब्रैकेट में sin थीटा 1 plus sin थीटा 2, that is 2 sin theta, both the angles are equal, and ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा will be making it tan थीटा, और थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो। Got it? Any doubt in this? बोलो। फाइनाइट लेंथ का फार्मूला लगा इसमें। Okay or not? Are you there? Nobody is responding. Shall I close the class? Everybody is sleeping. बंद कर दो। I'm closing it if you are not responding. No use of continuing if you are sleeping. Question number 69. How to do this question? At this point, we want field. This wire is coming like this. Infinite से semi infinite का हो जाएगा. This is quarter circle, 1/4 सब circle, उसकी फील्ड आएगी, रेडियस रिमेन है, और इसका आएगा सेमी इनफाइनाइट अगेन। तो तीनों का देखो सेम डायरेक्शन में आएगा। If all this point remaining one side of the wire, the field will be same direction, है ना। करंट का पैटर्न सेम है, देखो एक ही डायरेक्शन सेम आएगा, इट विल बी अपवर्ड, है ना। इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल के ऐड कर दो। I1 सेमी इनफाइनाइट का I1 विल बी min naught I by 4 pi a, और दूसरे वाले क्वार्टर सर्कल का 1/4 है ना, म्यू नॉट आई बाई 8 है, फुल का 2a होता है, will become 8a divided by 4, and इसका भी सेम अगेन सेमी इनफाइनाइट का। तीनों एडेड टुगेदर विल बी आउटवर्ड, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ k। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, एक ही में k दिख रहा है।
In one of the options only K is visible. डायरेक्शन से ही आइडिया लग जाता है कि यही आंसर हो सकता है ना. अगर इस तरह की सिचुएशन है तो डोंट सॉल्व इट. यू कैन सेव योर टाइम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगर डायरेक्शन पहले देख लिया हमने राइट हैंड रूल लगा के, है ना. ठीक है, इसका आंसर फिर डी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. Go through the question. Both the parallel wires are bringing the current outward. देखो सभी में डॉट्स हैं, राइट. ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगी. किस तरफ होगी डायरेक्शन? लाइक दिस. सेंटर में तो जीरो हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सेंटर में 0 0 0 किसमें? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. इन दोनों में से एक आंसर होगा. ये वाला पॉइंट इसके पास है, इसकी फील्ड ऊपर जा रही है, ये डोमिनेट करेगा. इसकी फील्ड नीचे जा रही है, अपोज करेगा. बट इन दिस रीजन फील्ड विल बी अपवर्ड, नेट फील्ड विल बी अपवर्ड. तो ये सही है. इसमें डाउनवर्ड है, इसमें भी सेम है. बट व्हाट अबाउट दिस साइड? यहाँ पे फील्ड देखो ऐसे नीचे की तरफ आ रही, इसकी भी नीचे की तरफ आ रही, ऐसे बड़ा सर्कल बनेगा. बट इसमें उन्होंने ऊपर दिखाया है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. इसकी फील्ड भी नीचे आएगी. डाउनवर्ड है तो नीचे, अपर है तो ऊपर. इसकी फील्ड नीचे आ रही है ऐसे, आई मीन ऐसे आ रही. ऑन एक्स एक्सिस पे फील्ड लेना बस. नीचे आ रही है इसकी, इसकी भी नीचे आएगी. तो इस एरिया में दोनों की नीचे आ रही है, इसीलिए डाउनवर्ड बिलो द दिस एक्सिस. और इस रीजन में दोनों की अपवर्ड आएगी. इसकी भी अपवर्ड आएगी और इसकी भी अपवर्ड आएगी. बोथ विल बी अपवर्ड. पॉजिटिव रहेगी. इसमें पॉजिटिव दिखा, इसमें नेगेटिव. कहाँ पे फील्ड चाहिए? ऑन एक्स एक्सिस, है ना. Two long parallel wires are at distance 2d apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper. As shown, the variation of magnetic field B along the line x line, इस लाइन पर. ऊपर की फील्ड पॉजिटिव रहेगी, इधर रहेगी. नीचे की नेट फील्ड डाउनवर्ड रहेगी. यहाँ पे सब नीचे फील्ड आएगी. यहाँ पर वेरी स्ट्रांग होगी, फिर वीक होगी, फिर वीक होगी, तो ऐसे. और इधर ऊपर फील्ड आएंगी, नेट फील्ड. close to the wire are tending towards 0, field tending towards infinite. यहाँ पे देखो, अगर हम केवल इसी से चेक करें, ये अपवर्ड है, इधर डाउनवर्ड है. जितना पास में आएंगे उतनी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी. Got it? Yes, sir. Okay. किसी को डाउट हो तो पूछ लो उसको. I will move on to the next one. तो दो वैसे ही रूल आउट हो जाते हैं. एवरी टाइम व्हेन डायरेक्शन इज सेम अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो सेंटर में 0 आएगी. तो दो तो रूल आउट हो जाएंगे, बाकी दो का चेक करना पड़ता है आपको. देखो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है. अगेन वेक्टर लेंथ ओनली. कर्व्ड वायर में वेक्टर लेंथ लेते हैं. तो वायर कैरिंग करंट I is placed in the uniform field in the form of curve. ये ऐसे साइन फंक्शन x is from 0 to 12. Force vector length is 12. F is equal to BIL. L will be 12. Vector length will be OA.
OA is nothing but 2L. ILB और BIL both are same. ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, कॉमन सेंस, वेक्टर लेंथ, दैट्स ऑल. ऑलराइट. ओके, आंसर नंबर सी है. Moving on to the next one. This one. एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला याद है? एनर्जी डेंसिटी इज हाफ म्यू नॉट डिनोमिनेटर बी स्क्वायर. तो म्यू आई मीन यू एंड डी पैराबोलिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन है. सी द कांस्टेंट. तो वाई एक्सिस की तरफ बेंड होगा कर्व. ऐसे पैराबोला कैसे आएगा? इस वाले पैराबोला. तो ओनली वन साइड इज जनरली शोन. ए ऑप्शन. पैराबोलिक. Moving on to the next one. देखो ये क्लास में किया था हम लोगों ने. एक रॉड है लेंथ एल की, उसको सेमी सर्कल में बेंड कर दो. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट नाउ? पहले कितना है? m into l. एक मिनट, सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे. हमने जो लेटेस्ट सिंबल यूज किए वो magnetic charge into length, dipole length. Now this is converted into semicircle, so circumference should be equal to length, therefore radius should be L upon pi. Now new dipole moment will be m dash will be magnetic charge into 2r distance. 2r will be acting as a dipole length. r की वैल्यू पुट कर दी हमने. q into m is nothing but a initial dipole moment. 2 by pi is the extra. इसको हम लोगों ने स्मॉल लेटर से सिंबल दिए इसको. अच्छा, इन्होंने कैपिटल एम लिखा है क्या? Therefore अभी हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैपिटल एम इज 2m by pi. बाद में करते जो हमने सिंबल लिए टेक्स्ट बुक के, वी आर फॉलोइंग दैट एंड लास्ट में चेंज कर रहे हैं. Got it? Yes, sir. 3/4 में कन्वर्ट किया तो ऐसे, if we converted like this, then vector length will be how much? This will be vector length. रूट 2r आएगी वेक्टर लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से. तो रूट 2 भी आ जाएगा r. यहाँ पे रूट 2r लिखना पड़ेगा. तो रूट 2 आएगा यहाँ पे. और थीटा एंगल अगर ऐसे है, उसका कुछ बताया था मैंने, m डैश बाई m. ऊपर कुछ साइन थीटा था क्या? साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2. थीटा इज इन रेडियन. So read the notes.
Revise the notes, keep revising the notes, otherwise you will forget. देखो ये Polish strength is given and dipole length is given. यहाँ से हमें dipole moment मिल जाएगा. Amount of the couple means torque. Torque निकालना है. Torque का formula torque is equal to mb sin theta. Theta is given 30. B is also given. Uniform magnetic intensity of flux density. ये B दिया हुआ आपको. ये यहाँ पे B दिया तो इसमें वैल्यू पुट करो. यहाँ पे थोड़ा change कर देते हैं न्यूटन. ठीक है, यूनिट चेक कर सकते हैं उसको. कहाँ से यूनिट लेके आएगी. ओके, ठीक है. यहाँ से यूनिट लाई मैग्नेटिक फील्ड पे. एफ अपॉन आई एन. एफ का न्यूटन, करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर. तो इस वाले फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लेके आइए. यहाँ पे इन्होंने दे नॉट रिटन प्रॉपर्ली. देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ और होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी समथिंग एल्स. तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये इस तरह से देयर मे बी सम प्रॉब्लम, बट यू हैव टू चेक इट कि ये किसकी यूनिट है. तो F इज इक्वल टू बी आई एल से, B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल से हमें पता लगा कि B की यूनिट है. यूनिट देख के हमें फिजिकल क्वांटिटी कभी कभी आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती है इफ दे आर नॉट गिवन प्रॉपर्ली. गॉट इट. तो टॉर्क निकलना था. पुट द वैल्यू नाउ. मूविंग ऑन टू दिस वन, नेक्स्ट वन. इसमें सब सीजीएस में दिया है तो आंसर भी सीजीएस में जाएगा. मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन डायरेक्टली and magnetic field is also given, angle is also given. तो work done निकालना है. Work done is final potential energy minus initial potential energy. Potential energy का फॉर्मूला याद है? बोलिए. Potential energy is how much? पोटेंशियल एनर्जी में कॉस, साइन में टॉर्क, टॉर्क में साइन. जब सस्पेंडेड फ्रीली होता है ना तो उसकी लाइन में आया था थीटा 1 विल बी 0, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, थीटा 2 30 डिग्री. After putting the values, we get the option number C. Got it? ये थीटा 2 है, थीटा 1 will be 0 because of suspended freely. No problem? No, sir. Okay, note down question number here. C option is solving after solving.
तो ये भी सेम टॉपिक है ना. Magnet of dipole moment M is situated with its axis along the direction of magnetic field of B. The work done in notating it by angle 180 degree. पहले वो again theta 1 is 0. cos 01 हो जाएगा MB. 180 cos 180 is minus becoming plus, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2MB. कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दे टेक द कैपिटल M सिंबल फॉर डायपोल मोमेंट. हम लोग स्मॉल m ले रहे हैं, डजंट मेक डिफरेंस. यू कैन जस्ट चेंज योर आंसर. मे यू कैन मेक इट कैपिटल M. ऑलराइट. ये सब इजी क्वेश्चन है. सेम फार्मूला टॉर्क के या पोटेंशियल एनर्जी के. नथिंग मच टू डू हियर. Important for board examination also. The dipole length is 10, having the pole strength this much, is kept in the magnetic field, having magnetic induction. Magnetic field को magnetic induction भी बोलते हैं. Equal to this much Tesla. It makes angle 30 degree with the direction of magnetic induction. The value of torque. MB sin theta, that's all. This is direct question again. Dipole moment निकाल लीजिए और MB sin theta पुट कर दीजिए. No big deal in this, just simple board level question. ऑप्शन ए. ये असाइनमेंट है, इसमें आप ग्रुप में डाला था ना मैंने. ऑलरेडी पोस्टेड लॉन्ग बैक इन द ग्रुप. आंसर दिए एंड में. वी हैव द आंसर गिवन एट द एंड. यू कैन क्रॉस चेक इट. अगेन सेम फार्मूला अगेन. parallel दिया. theta 1 is given 0. Given parallel, theta 1 is 0 and theta 2 is 60. टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम. वर्क डन निकाल लिया. उससे में MB की वैल्यू मिल गई W के टर्म में. एंड देन टॉर्क निकाल लिया. MB की वैल्यू W के टर्म में पुट कर दी 2W यहाँ से. गुड क्वेश्चन. Are you there? Yes, sir. Okay. So no problem. I think this question we discussed in the class also. It was in test paper also. ये सब इजी क्वेश्चन है. आगे टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं and they are easy also. Work done is change of potential energy U2 minus U1 and putting the values. देखो ये दो डायपोल है, दो बार मैग्नेट्स है, 90 डिग्री पर है. नेट डायपोल मोमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ दैट. एक वेक्टर इधर, अदर वेक्टर दिस साइड. इट विल बी रूट 2 टाइम्स ऑफ m which is ml. m is ml. यहाँ पे देखो पोल डिस्टेंस स्मॉल m दिया है. whereas we in NCERT book we have taken the dipole moment का symbol small m. We have to be very careful. तो यहाँ पे कैपिटल M लिया हम लोगों ने. फिर पोल डिस्टेंस अगर m दिया है. Okay, easy question again. How to do this question? L is equal to 2 pi r. R will be L upon 2 pi.
डायपोल मोमेंट क्या होता है, m is equal to NIA IA, a will be pi r square. r की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, l के लिए सॉल्व कर लो. क्लियर. ये वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया, रेडियस मिल गई. सर्कल का डायपोल मोमेंट इज I into A, that is I into pi r square. R की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, L के लिए सॉल्व किया तो ऑप्शन डी इज कमिंग गुड क्वेश्चन. दिस इज कैन बी आस्क्ड. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. All right. Yes, sir. Okay. 81. How to do this question? Direct question again. Cross product होता है. Tau is equal to m cross b. M is given. और ये I का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, I एंड J का K हो जाएगा. K वाला ऑप्शन सभी में K है. और 550 into 3 150, ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये 0 कैसे हो गया, इस पर लिख देते हैं. अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया. 50 into 0.5 I cross I, या तो डिटरमिनेंट से कर लो अगर, if you have the doubt you use the determinant, otherwise it is direct. I cross J will be K cap, ये 0 हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. What about this question? Dipole moment is given, magnetic field is given. If each pole of the magnet experiences the force of this much, the length of magnet, ये तो थोड़ा सा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा. ऐसे बार मैग्नेट है, फोर्स दिया हुआ ये, अगर दोनों के बीच लेंथ इज एल तो टॉर्क कितना होगा, F into L. तो F दिया है, L आ जाएगा, which is mb sin theta. mb दिया है, b भी दिया है, sin theta will be 1. यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए. Can you check up if it is not perpendicular, then how much it will come? ऐसे है, और फील्ड इस तरफ है. Let's check it if it is not perpendicular. Field is this side. ये थीटा हो गया, फील्ड के साथ एंगल, और साइन थीटा आएगा. जो साइन थीटा होगा
अपोजिट, ये उसकी लेंथ L है और डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा M और फील्ड इधर है B, कैपिटल M लेना पड़ेगा। हाँ नहीं, हाँ ठीक, तो टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा MB, ये तो FL यहाँ पर जाएगा, इधर भी FL sin थीटा आ जाएगा ना, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं भी है, दोनों तरफ sin थीटा विल मेक कैंसल इट, इसलिए परपेंडिकुलर नहीं दिया, क्योंकि वो sin थीटा इधर भी आएगा, sin थीटा इधर भी sin थीटा आएगा, कैंसल हो जाएगा। therefore they are not given perpendicular, बट हमने परपेंडिकुलर से इजीली वो कर दिया, but if it is not perpendicular, sin theta both side will get cancelled. Got it? देखिए ये डायपोल बार मैग्नेट है, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर फील्ड, ये हाफ डिस्टेंस है, तो हाफ डिस्टेंस पे फोल्ड 8 टाइम्स हो जाती है, 8:1, yes or no? B1 B2 is inversely proportional to cube of the distances, R2 is 48, R1 is 24, क्यूब हो गया तो 8, ठीक है। हाफ डिस्टेंस पर will be 8 times. Clear? Yes, sir. Okay. ये छोड़ दीजिए, इसमें उन्होंने फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 85, डायरेक्ट देखो, horizontal component is given, angle of dip is given, और vertical component चाहिए, tan del is equal to vertical component upon horizontal component, putting the value and getting D option is correct. So very simple question. देखो बाहर मैग्नेट इज गिवन है और इधर ईस्ट है, बाहर मैग्नेट का नॉर्थ जो है टुवर्ड द नॉर्थ ही है ना, जो नॉर्थ साइड है उस तरफ ही है, इधर ऐसे होगा, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, अर्थ की इधर से आएंगी, इधर भी होगा ऐसा, अर्थ की इधर से आएंगे ऐसे, तो इक्वेटर पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। 0 पॉइंट कहां पर मिलेगा? इक्वेटर पर, बी ऑप्शन। इक्वेटर कहां पे है? ईस्ट एंड वेस्ट, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, जब मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ होता है तो न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं उसको, है ना, जहाँ पे नेट फील्ड 0 होती है, इट विल बी on its equatorial points which will be along east and west. इसको टर्न करेंगे तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको टर्न कर दिया तो अभी मैग्नेट की नॉर्थ फील्ड लाइन ऐसे निकल के आएंगे, से घूम के जाएंगे, अर्थ की तो अपने साउथ से ही आती है, अर्थ की फील्ड लाइन साउथ से आती है, तो एक्सियल पॉइंट पर नल पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑन एक्सियल पॉइंट, दोनों को इक्वेट कर दो, अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी एक्सियल पे फील्ड निकाल के इक्वेट कर दो और हमें डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सियल पॉइंट के साथ इक्वेट करो और सॉल्व करो आर्क के लिए, इट इज कमिंग टू बी 30 सेंटीमीटर।
All right. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। फील्ड लाइंस इसकी ऐसे नॉर्थ से निकल के मैग्नेट की साउथ की तरफ जाती। जब नॉर्थ, इसका जो मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है, तब एक्सियल पॉइंट पर नेट फील्ड 0 मिलती है। अर्थ का ओरिजिनल कंपोनेंट इसका कहीं ना कहीं पे जाके इक्वल होगा। उस डिस्टेंस पर दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एनल्ड field on the axial point will be annulled by the horizontal component of magnetic field of the earth. All right. Next one is this one. This is good question. बताओ कैसे करेंगे? How to do this question? Simple question है, but you have to think and then you can. तो फार्मूला कौन सा लगने वाला बोलो? IBM वाला? तो फील्ड अगर डबल हो रही है तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/√2 times t dash will be t/√2 है ना? इनिशियल वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। क्लियर है ना? कन्विंस? अंडर रूट के अंदर है ना फील्ड, डिनोमिनेटर में। अरे देर यस सर। बस पहले ऑसिलेशन दिए पर मिनट, उससे टाइम पीरियड निकाल लो। जो उसका टाइम पीरियड आएगा उसको 1/√2 टाइम्स कर दो। सिंपल। This question can be asked in board examination also. Good question. पहला initial time period will be frequency का reciprocal है ना? पहले frequency निकाली, 1/2 आ गए, तो time period 2 आ गया। Can you see it? देखिए, frequency is number of oscillation divided by time, n/t. 30 time is 60 minutes. I mean 1 minute, that is 60 seconds. 1/2 और टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल होता है 2 सेकंड्स आ गया। नाउ फार्मूला लिखा हमने, तो फील्ड इज 1/√2 टाइम्स, तो फील्ड कितनी हो गई? डबल, तो नीचे √2 आ जाएगा। t dash will be, therefore t dash will be t/√2। बाकी तो हम तो कैंसिल हो जाएंगे। मेक 2 इक्वेशंस एंड डिवाइड or simply conclude. Save your time. All right. Note down this. Okay. ये कैसे करेंगे देखो, ऐसा भी क्लास में किया था ना हम लोगों ने। देखो इसका आंसर देखो क्या है। Similar question we have done it, but you can just do it again by vector addition करना है ना, because you have to see all the directions properly. इसका dipole moment किधर है बोलो? इस तरफ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये वेक्टर इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर आएगा। तीनों वेक्टर को ऐड कर दो। एक पॉइंट पे, एक
तीनों तीनों को शिफ्ट कर लो, प्रॉपर ओरिएंटेशन लगा के ऐड कर लो। देखिए कितना है। एक तो मैंने ऐसे बताया था तुमको, इसका इधर जा रहा है, यहाँ से एक पॉइंट से ड्रा करते हैं इसको, एक ये और एक मिनट, ये ऐसे जा रहा है, इसका इधर आ रहा है और इसका किधर जाएगा, ऐसे। इन दोनों का तो इधर कहीं पे आएगा √2 टाइम्स ये है, तो दोनों हट जाएंगे और ये 90 डिग्री पे दो वेक्टर है उनका, उसके साथ फिर से वेक्टर्स है 90 डिग्री पे ऐड करो, √(a² + b²। यस सर नो, देखते हैं। हाँ, इसका सोल्यूशन भी है, कंसीड। कैन यू सी इट? देखो इस तरह से बनना है एंगल, है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है डायपोल मोमेंट। इन दोनों का पहले निकाल लो 60 डिग्री का, ये इधर आएगा वर्टिकली डाउन आएगा, √3 टाइम्स 60 डिग्री पे दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते तो √3 टाइम्स आ जाता है। अब इसके साथ 90 डिग्री पे है तो अब इन दोनों का निकाल लो, तो 2m। ऑलराइट, dipole moment is the vector quantity, we have to add them vectorly। ठीक है, one more question देखते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट एसी, इसके 10 क्वेश्चन ले जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन है, वो फिनिश करके फिर एसी के विल सॉल्व इट। देखो ये ब्रेक ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे देखो 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे ब्रेक, जनरली जब हम ऐसे ब्रेक करते हैं ना, ऐसे कोई होता है यहाँ से ब्रेक करते हैं, एक पार्ट एक, ये एक पार्ट ऐसे ऐसे अलोंग द लेंथ अगर ब्रेक करेंगे तो वो उसमें देंगे में दे शुड मेंशन है ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली बोलते हैं ना उसको, जब ऐसे कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली बोलते हैं इसको, ऐसे मेंशन नहीं किया उन्होंने। जनरली ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स में ट्रांसवर्सली होता है ना, अलोंग द लेंथ इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनली, तो ट्रांसवर्सली से सॉल्व किया उन्होंने। ट्रांसवर्सली लिख देता हूँ, कभी कभी दे मिस दैट पॉइंट की। तो ट्रांसवर्सली में याद है तुम लोगों को फार्मूला, ये जो है ट्रांसवर्सली में लेंथ भी हाफ हो गई, मास भी हाफ हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड L²। बाकी तो कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पे 1/12, अगर याद नहीं भी है नो प्रॉब्लम, डायमेंशन तो याद होती है, मास की सिंगल डायमेंशन होती है, लेंथ की स्क्वायर होती, तो मास आधा हो गया, लेंथ भी हाफ हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, और मास 1/2 टाइम्स हो जाएगा। तो इतना तो बेसिक आइडिया लगा के कर सकते हैं। तो देखो कैन यू सी इट, I/BF I डैश निकाल लेंगे, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 और न्यू डायपोल मोमेंट इज हाफ। डायपोल मोमेंट तो दोनों केसेस में हाफ होता है, whether you break it transversely or you break it longitudinally, ये दोनों में हाफ होता है, बट ट्रांसवर्सली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8, लॉन्गिट्यूडिनल में 1/2। तो ये केस यहाँ पर पुट कर दो, अभी रूट के अंदर देखो, यहाँ पर एक अंडर रूट के अंदर 1/8 आएगा और डायपोल मोमेंट 2, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1/4, तो 1/2, तो हाफ हो जाएगा। पहले कितना था, 4 था, 4 का आधा 2,
B option. These things you should be able to do it fast. You can save your times by concluding it fast. These questions keep coming. Boards examination also. ये particular formula के देखो काफी questions हम देख रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक में जो फार्मूले होते हैं उसके क्वेश्चंस उसके ही क्वेश्चन मोस्टली दिखते हैं. आउटसाइड से नहीं पूछते ज्यादा वो. डेप्थ कैन बी मोर. यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ and continue in the next class and we'll start new chapter. Thank you. Any doubt?